Hello everyone. Today's topic of discussion is haloalkanes and haloarenes. They are preparations and chemical reaction along with physical and chemical properties. Now let us first talk about haloalkanes. Everyone is familiar with this word haloalkanes, where the basic compound of haloalkane is monohalogen derivative, where one halogen introduced in an alkane by replacing one hydrogen atom of alkane with X. So it represented by Rx or CnH2n plus 1x. What we have done before. The same thing. Now if you classify this haloalkane Rx, it can be classified as primary, secondary and tertiary on the basis of the carbon atom. Okay, monohalogen. If the halogen is attached to a primary carbon, it will be a primary. If it is attached to a secondary carbon atom, carbon attached to two alkyl groups, yeah, two carbon is secondary. And it is tertiary if a halogen attached to a tertiary carbon atom. That is a carbon attached to three alkyls, yeah, three carbons are tertiary. So monohalogen derivatives are of three types with respect to the carbon atoms. Okay. Now the further classification of this monohalogen derivative can be done on the basis of hybridization of carbon to which they are attached. For example, Rx, alkyl halide, where the halogen is attached to a sp3 hybridized carbon atom, single bonded, methyl chloride, isopropyl chloride, tert-butyl chloride. Or it can be allylic. Allylic comes from that allyl group. If you remember that allyl group is the propene group, where 1, 2, 3, the third carbon, this carbon is the allylic carbon. तो उससे halogen attach होना चाहिए. This allylic carbon is sp3 because single bond है, लेकिन that sp3 is attached to a sp2 carbon. So allylic halide has a characteristic of csp2, csp3, then that carbon is attached to X. Similarly, this example, sp2, iodine attached to sp3. Then it can be a benzylic halide. Benzyl group C6H5CH2 is benzyl, where CH2 is sp3, but this ring is sp2. So halogen is attached to a sp3 carbon, benzylic. Or it can be a aryl halide, where the halogen attached to directly to the benzene ring, aromatic ring. Aryl is the aromatic ring. And aromatic ring में जो carbon होता है, that is sp2 hybridized, so halogen attached to sp2. It can be vinylic. Vinyl group is CH2 double bond CH. This is vinyl group, if you remember the alkyl, where this carbon is sp2 hybridized, so iodine attached to sp2. It can be alkynyl halides, where the halogen is attached to sp. For example, अगर मैंने acetylene लिया, replace the hydrogen with a halogen, तो halogen will be attached to sp, तो alkynyl halide भी हो सकता है. Now then we have a dihalogen derivative. ये तो आप लोग familiar है, geminal, halogen on same carbon, vicinal on the adjacent carbon atom. Or they can be a alpha omega terminal halides. For example, if I have 4 carbon atom, the first carbon is alpha, then beta, then gamma and omega. तो alpha omega have 2 halogen. तो ये भी dihalogen category में आते हैं. Then we can have trihalogen, where 3 halogens are placed in a molecule, for example chloroform, iodoform, bromoform. Or tetrahalogen, where 4 halogens are present in a molecule, like tetrachlorocarbon, या methane, tetrabromomethane, or this vicinal type tetrahalides. So this is the basic classification of Rx, that is monohalogen derivative, dihalogen and trihalogen and tetra. Now we are going to discuss about preparations of monohalogen derivative of alkanes. Okay. The first method of preparation of Rx, that is monohalogen derivative, is halogenation of alkanes, which we have seen in alkanes. If you remember, alkane RH reacts with X2. अगर क्लोरीन लिया तो सनलाइट चाहिए, ब्रोमीन है तो AlBr3, आयोडीन है तो रिएक्शन रिवर्सेबल होगा, so you require, because of formation of HI, so you require that oxidizing agent HiO3, HgO, dilution O3. ये वो वाला रिएक्शन है, फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते. Then addition of HX to alkene. If you remember in alkenes, HCl, HBr, HI is added across the double bond to get a RX, जहाँ पर हम लोग मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक पेरोक्साइड इफेक्ट पढ़ते हैं. तो you have to refer alkene alkene for this reaction. We have already done in detail. Then allylic substitution by NBS, N bromosuccinamide. ये आपको alkenes में दिखेगा, allylic position पे bromine डालता है, या sulfonyl chloride ये allylic position पे Cl डालता है. So these reactions we have done already. Now we're going to start a nucleophilic substitution in alcohols. Let's prepare Rx from alcohol. Okay.
nucleophile, negative species. So in this reaction, alcohol is represented as ROH. ROH में ये पार्ट डेल्टा माइनस है, मतलब OH माइनस है. दिस एंटायर OH माइनस विल बी रिप्लेस्ड बाय X माइनस. तो ये अगर X माइनस इसको रिप्लेस कर देगा, X माइनस रिप्लेस कर देगा, तो इट बिकम्स व्हाट, RX, अल्काइल हैलाइड. तो X माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल है. सो वन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, नेगेटिव स्पीशी रिप्लेसेस द अनदर न्यूक्लियोफाइल. ओके, X माइनस ने किसको रिप्लेस किया, OH माइनस को. दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ OH माइनस इज रिप्लेस्ड बाय X माइनस, बट X माइनस के लिए आपको रिएजेंट चाहिए जो X माइनस प्रोड्यूस करे. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिएजेंट. Either you take the help of HX, halo acids, HCl, HBr, HI, or you take phosphorus halides, PX5, pentahalides, or trihalides, or you take thionyl chloride, SOCl2, chlorinating agent. तो ये तीनों रिएजेंट आपको क्या देंगे, हैलोजन देंगे, जो क्या रिप्लेस करेगा, अल्कोहल का OH रिप्लेस करेगा. मतलब सपोज द फर्स्ट थिंग विच आई यूज HX. सो इफ आई यूज HX इन अल्कोहल, सबको पता है रिएक्टिविटी रेट में HI की reactivity is greater than bromide and chloride. So what will happen from here, the entire part OH minus NH plus will be removed to form ROH, sorry, to form RX plus what is removed, H2O. So you get an alkyl halide. Simple है. But alcohol तीन टाइप के होते हैं. प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल CHOH, दो अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पे, टर्शरी अल्कोहल R3COH, OH अटैच टू टर्शरी कार्बन. सो इफ देयर आर थ्री अल्कोहल्स, देन योर HX, दैट इज HCl, HBr, HI रिक्वायर सर्टेन कंडीशंस. ये कंडीशन में रिएक्शन बहुत फेवरेबल होता है फॉर दिस थ्री टाइप ऑफ अल्कोहल. सपोज वी आर यूजिंग HCl, क्लोरिनेटिंग एजेंट, and that HCl is reacting with primary alcohol. So you have to take conc HCl, not dilute, conc. Then you have to add a catalyst called as anhydrous ZnCl2. Together they will call as Lucas reagent. नाम याद रखना कि ZnCl2 and conc HCl is called as Lucas reagent. And you have to heat it. But if you take secondary alcohol, you add catalyst, मतलब Lucas reagent, and anhydrous ZnCl2 and conc HCl, but at a room temperature. No need to heat it. फॉर टर्शरी अल्कोहल नो नीड टू ऐड अ कैटलिस्ट. तो मतलब इन तीनों में से सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली टर्शरी, क्योंकि ना तो हीट करना पड़ता है ना कैटलिस्ट ऐड करना पड़ता है. देन विद HBr यू प्रिपेयर HBr इन द रिएक्शन मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड एज C2 रिएक्शन मिक्सचर, जिसमें आप NaBr और H2SO4 ऐड करो. NaBr conc H2SO4 ऐड करो. किसके साथ, अल्कोहल के साथ. सो NaBr conc H2SO4 से रिएक्ट करके HBr बनाएगा. HBr ROH से OH को रिप्लेस करके RBr बनाएगा. क्लियर है. प्राइमरी अल्कोहल है, रिफ्लक्स इट हीटेड. सेकेंडरी अल्कोहल के लिए और टर्शरी अल्कोहल के लिए conc H2SO4 यूज़ नहीं करो, यूज़ डाइल्यूट H2SO4. रीज़न वाई, बिकॉज conc H2SO4 से हीट करने से और conc H2SO4 के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स होगा. इफ यू रिमेंबर, वन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वेयर टर्शरी अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन मोर इजीली. तो conc H2SO4 की जगह भी यूज डाइल्यूट H2SO4. देन इफ यू यूजिंग HI, you require 57% of HI, which is prepared by using Ki and H3PO4. Both of them will react to produce HI. Okay, so this is the condition you require for this three type of alcohol. Now, for example, if I take a methanol, उसका क्लोरिनेशन करना है तो conc HCl लिखना चाहिए रो पे, डेल्टा एनहाइड्रस ZnCl2 Lucas reagent. What will happen, यहाँ से H2O निकल जाएगा and you get a product that is CH3 CH2 Cl plus H2O. OH minus is replaced by Cl minus. मैकेनिज्म बहुत सिंपल है. जब आप HCl ऐड करते हो, इट प्रोड्यूस H plus and Cl minus. H plus इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन. देन यू ऐड अल्कोहल. अल्कोहल पे O पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट विल बी डोनेट टू H plus आयंस. H plus आयंस वो इलेक्ट्रॉन ग्रैब कर लेगा and it forms a structure that is CH3 CH2O H plus. This is called as protonated alcohol. Okay, now since oxygen is carrying positive charge,
सो व्हाट इट विल डू, इट बिकम्स हाईली अनस्टेबल. तो वो क्या करेगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन. It cannot sustain this positive charge. So to get rid of the positive charge, it will pull this electron pair, due to which H2O will be removed, and this entire alkyl group will convert into a carbocation. सबसे stable carbocation कौन सा होता है, टर्शरी. इसके लिए टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करता है इस रिएक्शन में एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी. देन द न्यूक्लियोफाइल comes in the third step, which is the fast step. It attacks the carbocation and it forms CH3 CH2 Cl. और याद रखना कार्बोकटायन हो रहा है मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. नाउ सपोज मैंने एक सेकेंडरी अल्कोहल लिया, देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, इस पर ब्रोमिनेशन करना है. टेक dilute H2SO4 with NaBr. NaBr reacts with dilute H2SO4 to gives you HBr. HBr इस पर रिएक्ट करेगा, OH को रिप्लेस करेगा, so you get a product CH3 CH CH3Br plus H2O. Now आयोडीनेशन करना है, टेकिंग 57% ऑफ HI. रिफ्लक्स कर दिया मैंने, सॉरी मिस्टेक से यहाँ पर आई था, should be OH. So this OH will be replaced by I, so it forms a structure CH3 CH2 CHI CH3. क्योंकि ये जब OH2O निकल जाएगा यहाँ पर कार्बोकटायन क्रिएट होगा. आपको याद होगा इस रिएक्शन में कार्बोकटायन क्रिएट होता है. ये कार्बोकटायन पे आयोडाइड अटैक करेगा थर्ड स्टेप में. सी अगेन इफ आई टेक अ टर्शियरी अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव. यू टेक रूम टेम्परेचर कॉन्क HCl, जस्ट क्लोरीनेशन करना है, तो आपको एनहाइड्राइड Cl2 का भी जरूरत नहीं है. OH विल बी रिप्लेस्ड इजीली. इट फॉर्म्स CH3C CH3 CH3 प्लस. देयर विल बी अ कार्बोकटायन हियर, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में H2O निकल जाता है, सी कार्बोकटायन बन जाता है. तो यहाँ पर कार्बोकटायन बनेगा, इज मोर स्टेबल. Then Cl minus will attack to form tertiary butyl chloride and you get a water. Okay, so since carbocation is forming, आपको याद होगा कार्बोकटायन का ऑर्डर ट्राइफिनाइल, डाइफिनाइल, बेंजाइल, अलाइल, 3 degree, 2 degree, 1 degree. So this will be the order for the reaction. Why? Because there is a formation of carbocation. Plus there can be a chance of rearrangement. देखते हैं हम लोगों को कैसे आएगा. Okay, remember the second point, that conc HCl and anhydrous ZnCl2 are called as Lucas reagent, and this reagent is used to identify primary, secondary, tertiary alcohol. Why? सबसे फास्ट रिएक्टिव कौन है, टर्शियरी अल्कोहल. तो टर्शियरी अल्कोहल में जैसे ही आप ये ऐड करोगे कॉन्क HCl, इट विल फॉर्म अ टर्बिड अपीयरेंस ऑफ टर्शियरी हलाइड इंस्टेंटली. जैसे ही ऐड किया मिक्सचर वैसे ही दिखेगा. सेकेंडरी में यू सी अ टर्बिड मिक्सचर ऑफ RCl, अ टर्बिडिटी, थोड़ा कलर फेड हो जाएगा, टर्बिड अपीयरेंस होगा, लेकिन 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स ये इंस्टेंट टर्बिड अपीयरेंस देगा. ओके, मडी अपीयरेंस कैसा होता है, टर्बिड अपीयरेंस लाइक मिल्क या कैल्शियम कार्बोनेट का जो मिक्सचर होता है वैसा टर्बिड अपीयरेंस देगा. प्राइमरी अल्कोहल डज नॉट गिव टर्बिड अपीयरेंस, मतलब वो RCl को इजीली फॉर्म ही नहीं कर रहा है एट रूम टेम्परेचर. यू हैव टू हीट इट. ओके, not you have to heat it and after some time it will give you a appearance, a turbid appearance. So सबसे late appearance जो देगा that will be a primary alcohol. अच्छा, since कार्बोकटायन is forming, उसमें intermediate बन रहा है तो rearrangement possible है. जैसे ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रीअरेंजमेंट में, वापस फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सपोज इसका प्रोडक्ट लिखना है कि HI है तो OH विल बी रिप्लेस बाय I, और कोई इसका प्रोडक्ट ऐसा बना देगा CH3C CH3H CHI CH3 और इसको मेजर प्रोडक्ट लिख देगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. रीज़न क्या होगा, अगेन देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन. सो इफ़ यू सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, सबसे पहले स्टेप में H+ अटैक करता है O पे, अभी हम लोग ने देखा था. दैट विल बी अ CH3C CH3H CH. ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन था OH का. इट हैज़ 2 लोन पेयर्स CH3. सबसे पहले कौन अटैक करता है, H+ आयंस. तो इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड टू H+ आयंस. हमेशा एरो इस तरफ बनाना जहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है. ओके, सो नाउ यू गेट अ इंटरमीडिएट HCHO, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल गया. O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, वो सस्टेन नहीं कर सकता. इट विल पुल दिस इलेक्ट्रॉन पेयर. आपको याद होगा फिर एक स्लो स्टेप होता है. इस स्लो स्टेप में क्या फॉर्म होता है, कार्बोकटायन. सो H2O विल बी रिमूव, H2O will be removed and you get a structure
CH3 C CH3H CH plus CH3. दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटायन, बट आपको याद होगा हाइड्राइड शिफ्ट इज पॉसिबल. मिथाइल भी हो सकता है, लेकिन हाइड्राइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ये मैंने सिखाया था पहले. हाइड्राइड होता है शिफ्ट, फिर फिनाइल होता है, फिर मिथाइल होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट 1,2 शिफ्ट, you can convert this secondary carbocation into more stable tertiary, and then in the fast step कौन अटैक करता है? I minus. So you get a product CH3C CH3 I attached to CH2 CH3. तो आपने एक सेकेंडरी अल्कोहल लिया था, तो आपका सेकेंडरी जो आयोडाइड था वो अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट नहीं है. जो अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3C CH3I CH2 CH3. एक टर्शियरी आयोडाइड बनेगा, 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन. ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा. क्लियर है? बिकॉज ऑफ द हाइड्राइड शिफ्ट, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. नाउ द नेक्स्ट रिएजेंट विच कैन सब्स्टिट्यूट OH माइनस विथ X इस फॉस्फरस हलाइड. फॉस्फरस हलाइड दो टाइप के होते हैं, ट्राई हलाइड्स, पेंटा हलाइड. ट्राई हलाइड PX3, पेंटा हलाइड PX5. ट्राई हलाइड में स्टेबल PCl3 स्टेबल है, बट PBr3 PI3 लेस स्टेबल है. इसके लिए उनको रिएक्शन मिक्सचर विच इज कॉल्ड एज C2 इज कॉल्ड एज रिएक्शन मिक्सचर. उसी में ही आपको प्रिपेयर करना पड़ता है दोनों डायरेक्टली. ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं होते, प्रिपेयर करना पड़ता है बाय यूजिंग रेड फॉस्फरस एंड आयोडीन इफ यू वांट PI3, और रेड फॉस्फरस और ब्रोमीन इफ यू वांट PBr3. Okay, so it has to be prepared. PCl5 स्टेबल है, बट PBr5 PI5 आर नॉट नोन टू एग्जिस्ट. अभी तक के वो स्टेबिलिटी उनकी मिली नहीं है. कंपाउंड डजंट एग्जिस्ट. सपोज मुझे PX3 से रिएक्ट करना है, PCl3 PBr3 या PI3 से. तो PX3 से रिएक्ट करने के लिए यू रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल रिएक्ट्स विथ PX3. देखो इजीली यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है P, और ये सारे OH निकल जाएंगे. All 3 X will come at R to form 3 moles of RX, plus you get a product H3PO3, phosphorus acid. You have to reflux the mixture, you have to heat and reflux it. अभी ethanol और PCl3 लिया है, so you get 3 moles of C2H5Cl plus H3PO3. PI3 लिया है तो एरो पे लिखना पड़ेगा आयोडीन रेड फॉस्फरस. PBr3 लोगे ब्रोमीन रेड फॉस्फरस लिखना पड़ेगा. Okay, so this is OH and PI3. So OH will be replaced by iodine, so you get 3 moles of CH3 CHI CH3 plus H3PO3. Simple. PCl5 take only 1 mole of alcohol. PCl5 में सिर्फ 1 मोल. देखो ये पार्ट यहाँ से निकल जाता है in the form of what? HCl. ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, Cl it goes to R, so you get RCl, alkyl halide, plus HCl plus POCl3 is remaining, phosphoryl chloride. समझो इथेनॉल लिया है तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा C2H5Cl प्रोडक्ट प्लस HCl प्लस POCl3. Okay, so this was about PCl5 and PX3. Now remember few points from this preparation, that it is a good yield of primary RX. Secondary tertiary alcohol will undergo dehydration. Therefore सबसे बेस्ट मेथड है प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी टर्शियरी के लिए नहीं है. डिहाइड्रेशन जाके वो अल्कीन्स बनाएंगे. ओके, तो लोअर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स आर प्रिपेयर बाय दिस मेथड. आपको क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है तो द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अल्काइल क्लोराइड इज यूजिंग थायोनिल क्लोराइड SO2Cl2, डाजन्स मेथड. में अल्कोहल रिएक्ट्स, ये भी अल्कोहल ही है, अल्कोहल से ही रिएक्ट कर रहे हैं आप. अल्कोहल रिएक्ट्स विद SOCl2. ओके, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से देखो HCl निकल जाएगा, O goes to S to form SO2, O goes to S to form SO2, and Cl goes to O to form RCl. So you get a RCl plus SO2 gas which will escape out, HCl gas which will escape out. You add little bit of pyridine as a base to neutralize HCl अगर वो excess है तो. लेकिन ये दोनों गैस
it will escape out. Since they are gas, they will displace by upper displacement of air, they will be removed. So इसका filtration बहुत easy होता है, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है वो गैस बन के निकल जाएंगे. इसमें आप SOBr2 SOI2 यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दे अनस्टेबल एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. ओके, बट इसमें दिस इज वेरी इट्स द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड. रिमेंबर दैट थायोनिल क्लोराइड इज द बेस्ट मेथड अल्काइल क्लोराइड के लिए. अच्छा, इसी के ऐसे ही दिखता हुआ एक रिएजेंट है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा. SOCl2 नहीं है ये है SO2Cl2. SOCl2 is called as sulfonil or thionyl chloride. Okay, remember that, thionyl chloride. और SO2Cl2 is called as sulfuryl chloride. दोनों में डिफरेंस है एक O का. सल्फ्यूरिल क्लोराइड भी क्लोरिनेटिंग एजेंट है, लेकिन अल्कोहल के लिए नहीं, अल्कीन्स के लिए. अल्कीन्स में आप SOCl2 ऐड करो, यू गेट RCl, अल्काइल क्लोराइड मिलेगा. SOCl2 अल्कोहल में नहीं, आपको अल्कीन में ऐड करना है. और इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अलाइलिक क्लोरिनेशन के लिए. आपको याद होगा हम लोगों ने NBS देखा था, ब्रोमिनेटिंग एजेंट, जो अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन प्रोड्यूस करता है. या तो आप हैलोजन लेके 773 केल्विन पे यूज़ करो तो अलाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड यू विल गेट अ हैलोजन. सिमिलरली यू कैन यूज SO2Cl2 विच रिप्लेस द अलाइलिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. सो अलाइलिक पोजीशंस के लिए SO2Cl2, NBS और X2 यूज़ करना है 773 पे. अल्केन को अल्काइल क्लोराइड के लिए SO2Cl2 यूज़ कर सकते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड. बट फ्रॉम अल्कोहल यू नीड टू यूज थायोनिल क्लोराइड. सो रिमेंबर दिस डिफरेंस बिटवीन SO2Cl2 एंड SOCl2 एंड द सिमिलैरिटी ऑफ SO2Cl2 विथ NBS ब्रोमिनेटिंग एजेंट एंड विथ हैलोजन एट 773 अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देगा. द नेक्स्ट प्रिपेरेशंस आप लोगों ने अल्केन्स में देखा है, halogen exchange reaction, Finkelstein reaction where RX reacts with NaI to form Ri and Schwarz reaction to prepare alkyl fluoride. याद होगा ये रिएक्शंस तो हम लोग ने देखे थे. फ्लोरीन डायरेक्ट नहीं कर सकते तो Schwarz रिएक्शन था. और Finkelstein रिएक्शन अल्काइल आयोडाइड के लिए, where chloride bromide is replaced by iodide, and Schwarz reaction is where RX, where X can be your chlorine and bromine, it has to be replaced with fluorine, so you have to react this with certain reagent, मर्क्यूरियस फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड. ये रिएक्शन हम लोग अल्केन में कवर कर चुके, सो यू कैन रिफर अल्केन फॉर दैट. नाउ बोरोडाइन हंसडिकर रिएक्शन, कहीं पर भी हैश मार्क दिखेगा ना तो रिमेंबर दिस हैश मार्क इज सिग्निफाइंग कि दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर JEE नीड, नॉट फॉर थियरी. तो थियरी के लिए नहीं है. इन दिस रिएक्शन यू टेक सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOH, ठीक है. उसको मॉइस्ट Ag2O यानी AgOH से रिएक्ट करूँगा तो बन जाएगा RCOAg. बेस और एसिड रिएक्ट करके इसका सिल्वर सॉल्ट लेंगे. तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट करोगे सो देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर रिएक्शन में. AgBr विल बी रिमूव, सिंपल है. यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Br गोज टू R एंड CO2 विल बी रिमूव. सो यू हैव अ प्रोडक्ट, यू गेट RBr plus CO2 plus AgBr. रिमेंबर 1 कार्बन विल बी लेस. अगर ये आपका सिल्वर सॉल्ट N कार्बन का है तो ये N-1 कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा. लाइक सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड हैज 2 कार्बन एटम, बट यू रिएक्ट दिस, सो CH, दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक, Br goes to CH3 to form what? CH3Br plus CO2 plus AgBr. क्लियर है? दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको ज़रूरत नहीं है, जिस फॉर द इंफॉर्मेशन यू कैन गो थ्रू इट. बट याद रखना इस रिएक्शन में अगर सिल्वर सॉल्ट के साथ आयोडीन यूज़ किया, आयोडीन, तो इट विल फॉर्म ए एस्टर. बाउंस मेनी रिएक्शंस, इट विल फॉर्म एन एस्टर. अगर आयोडीन यूज़ किया तो, ब्रोमीन यूज़ किया तो अल्काइल ब्रोमाइड 1 कार्बन लेस. मैकेनिज्म आपको नहीं पूछेगा, बट याद रखना इट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन. कौन सा सॉल्ट सबसे अच्छा इसमें प्रिपेयर होगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय सेकेंडरी एंड टर्शियरी. ओके, बट 1 कार्बन विल बी लेस इन दिस रिएक्शन. Okay guys, next is the physical property of haloalkane. Now this part will be self study because हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अल्केन में बात कर चुके हैं, जैसे विद रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, सेम थिंग. So you can note down every detail from it and you can refer it.
about haloalkanes and haloalkenes, boiling points and melting point के बारे में. Solubility, they do not get dissolved in water because of lack of hydrogen bonding. ये organic है, therefore they try to dissolve more in organic solvents. Then density, as the mass increases, the density increases. Iodine has a greater mass, so density will be more. Okay, these are the physical property. You need to do it on your own, but I am giving you the entire detail of this property. सिमिलरली अबाउट दी डाइपोल मोमेंट, आपको याद होगा पोलैरिटी के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था. एक चीज़ याद रखना, इन केस ऑफ डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट RCl हैज़ अ ग्रेटर डाइपोल मोमेंट एज कम्पेयर टू CH3F. F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर भी ये पॉइंट नोट करने जैसा है. रीज़न क्यों है? बिकॉज F इज़ वेरी स्मॉल, इट हैज़ लोन पेयर. द लोन पेयर विल स्टार्ट रिपेलिंग दिस बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर रिपेल होने की वजह से ये बॉन्ड पेयर रिपेल हो जाएगा, तो चार्ज ट्रांसफर ज़्यादा फ्लोरीन की तरफ नहीं होगा, ज़्यादा चार्ज सेपरेशन फ्लोरीन की तरफ नहीं होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन. एंड डाइपोल मोमेंट इज़ नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, जिसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव स्पीशी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो उस पर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस चार्ज आता है on the plus side group, but इसमें separation ज़्यादा नहीं होगा as compared to chlorine because of the internal repulsion. That is why this is the anomalous behavior where chloride becomes more as compared to fluoride. And ये भी मैंने dipole moment के lecture में discuss किया था, same thing. The formula to calculate a resultant dipole moment, if cos theta is 180, the dipole moment becomes 0. Para position equivalent structure जहाँ पर आता है plane of symmetry, और जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा पुल होगा एक ही साइड पे इलेक्ट्रॉन्स. ओके, so this was about physical property and preparations of haloalkanes. Now we'll start with the chemical reactions of haloalkanes.